हाय स्टूडेंट्स, ये आपका नेक्स्ट वीडियो है क्लास 12 बायोलॉजी का। तो पिछली क्लासेस में हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी कर लिया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में कि कैसे माइक्रोस्पोरोजेंसिस से पॉलन ग्रेन या मेल गैमेटोफाइट बनता है, वेयर मेगास्पोरोजेंसिस के थ्रू कैसे फीमेल गैमेटोफाइट या एग सेल का फॉर्मेशन होता है या मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। लाटली इन सबको देखने के बाद हमें ये पता चलता है, या फिर अगर आप ध्यान से पढ़े तो जो मेल गैमेटोफाइट है जो एंथर में बना हुआ है या माइक्रोस्पोरेंजियम में बना हुआ है, और जो फीमेल गैमेटोफाइट है जो एम्ब्रियो सैक में प्रेजेंट है, दोनों ही क्वाइटली एंजियोस्पर्मिक प्लांट के केस में इमोबाइल होता है। तो अगर ये मोबाइल हो गए तो इनका फ्यूजन ही अगला स्टेप होता है हमारे प्लांट के लाइफ साइकिल के डेवलपमेंट में। अगर इनका फ्यूजन ही नहीं हुआ, मीन्स अगर इनका फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ, तो किसी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट का लाइफ साइकिल आगे नहीं जाएगा। तो फ्यूजन होने के लिए ये ज़रूरी है कि जो मेल गैमेटोफाइट है या जो पॉलन ग्रेन है वो फीमेल के स्टिग्मा पर जाए या फीमेल गैमेटोफाइट तक पहुँचे। इस टोटल प्रोसेस को, जिसमें मेल गैमेटोफाइट या पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होता है फीमेल के स्टिग्मा तक, फीमेल प्रोडक्टिव पार्ट जो है उसके स्टिग्मा तक, इसको कहा जाता है मेनली पॉलिनेशन। तो इस क्लास में हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे पॉलिनेशन और पॉलिनेशन के टाइप्स को। ठीक है, तो सिंपल सा अगर कोई ये पूछे कि कैसे ट्रांसफर होता है, उस मैकेनिज्म को क्या कहते हैं, जिसमें एक मैच्योर पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंचता है, उस प्रोसेस को टिपिकली बोला जाता है पॉलिनेशन। और एनसीईआरटी में बहुत ही सिंपल लाइंस में इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, और वो लिखा हुआ है दैट इज द ट्रांसफर ऑफ द pollen grain to a stigma of the pistil is called pollination. So generally pollination क्या है? pollination ऐसा प्रोसेस है जिसमें pollen grain क्या होता है, ट्रांसफर होता है पिस्टिल के स्टिग्मा पर। ठीक है, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। अब एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में ये जो हमारा पॉलिनेशन है, दिस पॉलिनेशन कैन बी ऑफ मेनली टू टाइप्स। दिस पॉलिनेशन आर मेनली टू टाइप्स। ये पॉलिनेशन भी कितने टाइप का है, मेनली दो टाइप का है। द वेरी फर्स्ट इज कॉल्ड द self-pollination, that is called the self-pollination, and the second one is called the cross-pollination. These are the two main mechanisms through which a pollen grain will transfer to the pistil, to the stigma of the pistil. In case of angiospermic plant can be happened by these two methods, a self pollination and a cross pollination. But according to NCERT, अगर आप NCERT में देखोगे तो उन्होंने लिखा हुआ है, NCERT में टिपिकल लाइन लिखी हुई है, on the basis of the pollen grain source the pollination can be divided mainly three types: autogamy, zytonogamy and a genogamy. These are the main three: autogamy, zytonogamy and genogamy. But actually this self pollination can be divided many two types. This self pollination further will be the two types. What are these two types? The very first is the autogamy, and the second one is the zytonogamy. These two are the main process. Okay, whereas the cross pollination, or in other words it is also called as the xenogamy. So this is a very important flow chart through which
we can study about the types of pollination. The pollination is what? It is a nothing. It is a process that is a transfer of the pollen grain to the stigma of the pistil is called the pollination. And in a typical angiospermic plant, this pollination can be of two types: self-pollination and the cross-pollination. Whereas the self-pollination further divided into the two parts, autogamy and xenogamy, where the cross-pollination is also called as xenogamy. But remember that in typical NCERT line is that on the basis of source of pollen grain, the pollination can be of mainly three types: autogamy, xenogamy and the xenogamy as well. So these are the three methods by which the pollen grain will transfer from anther to the stigma. Okay. So very firstly we will discuss about the autogamy, xenogamy, and then we will go into the xenogamy. But very firstly we will make a concept. Let's make a concept about the self pollination. Then we will go into the cross pollination and its types as well. तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में जो पहला टाइप है वो है सेल्फ पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन को हम समझेंगे कैसे। सेल्फ पॉलिनेशन बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है। तो सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब ये होता है कि आपका फ्लावर ऐसा हो जो बाइसेक्सुअल हो। बाइसेक्सुअल का मतलब जब उसका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों के दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट रहें और फिर उस फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मींस उसके स्टेमन से निकलने वाला पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाए। सपोज दैट देखिए यहाँ पे ये जो मैंने फ्लावर बना रखा है ये सिंगल फ्लावर है, ठीक है। अगर इसी फ्लावर के एंथर से जो स्टेमन है इसी के एंथर से निकला हुआ पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो जाए तो ये इस टाइप का पॉलिनेशन क्या कहलाता है? सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। वेरी सिंपल वर्ड्स आप कह सकते हो कि सेम प्लांट सेम फ्लावर और सेम प्लांट के सेम फ्लावर में एंथर उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाए तो या उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो तो इस टाइप का पॉलिनेशन क्या कहलाता है? सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। सेकेंड इसका जो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका कैरेक्टर है वो क्या है कि इसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा। वाई इसमें वेरिएशन क्यों नहीं आएगा? सिंपल सा है कि अगर ये एक सिंगल फ्लावर है उसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जा रहा है तो कोई नई कैरेक्टर्स की मिक्सिंग नहीं हो रही है, कोई नया कैरेक्टर नहीं है, सिंगल वही प्लांट है और उसी प्लांट का पॉलन ग्रेन उसी प्लांट के स्टिग्मा पे जा रहा है तो ये क्या होगा? कोई वेरिएशन नहीं आएगा। और फिर एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर कि क्या इस मीडियम में किसी एजेंसी का इस प्रोसेस में या सेल्फ पॉलिनेशन में किसी एजेंसी किसी मीडियम किसी एजेंट की जरूरत पड़ेगी? नो, नॉट एट ऑल, बिकॉज द फ्लावर सेम है और उसी फ्लावर के स्टेमन से निकला हुआ पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? इसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा इसमें याद रखना पड़ेगा कि फ्लावर में सिंक्रोनी होना चाहिए। फ्लावर में क्या होना चाहिए? सिंक्रोनी होना चाहिए। मींस द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मस्ट बी मैच्योर्ड एट द सेम टाइम। दोनों एक ही समय पर मैच्योर है। अगर ये सिंक्रोनी नहीं हुई तो सेल्फ पॉलिनेशन का चांस कम हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। और इसी को सिंपल्स में या सिंपल वर्ड में इसी पॉलिनेशन को बोला जाता है ऑटोगेमी। ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ। गेमिंग का मतलब होता है फ्यूजन, मतलब जब सेल्फ ही उसी फ्लावर का फ्यूजन हो जाए तो दिस इज अबाउट द ऑटोगेमी। सो इनटू द ऑटोगेमी क्या होगा? सेम प्लांट होगा, सेम फ्लावर होगा, कोई वेरिएशन नहीं आएगा, किसी मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, ठीक है, पॉलन ट्रांसफर के लिए। लेकिन सिंक्रोनी होनी चाहिए, मीन मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेम टाइम पर मैच्योर होना चाहिए। दूसरा सेल्फ पॉलिनेशन का जो टाइप है बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है ज़ेटेनोगेमी। ज़ेटेनोगेमी में क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में समझिए, इसमें फ्लावर तो डिफरेंट होंगे बट प्लांट क्या होगा? सेम होगा। मींस व्हेन द ट्रांसफर ऑफ pollen grain will takes place from the same plant
ऑन द सेम प्लांट बट इन बिटवीन द डिफरेंट फ्लावर। जैसे मैंने यहाँ बना रखा है, ये देखो ये सेम प्लांट है, इस पे 2 फ्लावर है। अब अगर इस फ्लावर से निकलने वाला जो पॉलन ग्रेन है वो उसी प्लांट पे सिचुएटेड दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर चला जाए, तो इस टाइप का पॉलिनेशन क्या कहलाता है? जिटोनोगेमी कहलाता है। तो जिटोनोगेमी का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखिएगा, डिफरेंट फ्लावर होगा लेकिन प्लांट सेम होगा। तो जब प्लांट सेम है तो क्या वेरिएशन आएगा? नो, देयर इज नॉट अ वेरिएशन, यहाँ कोई वेरिएशन नहीं आएगा। ठीक है, और क्या किसी मीडियम का रिक्वायरमेंट होगा? यस, मीडियम का रिक्वायरमेंट होगा। सो इट्स रिक्वायर्ड मीडियम, but very specific line which is present in your NCERT, that is this Geitonogamy is genetically autogamy. Geitonogamy genetically autogamy होता है, but functionally and ecologically it is a cross pollination. फिर से सुन लो, genetically Geitonogamy is a autogamy but it is functionally and ecologically cross pollination. That is about the Geitonogamy. Now we will come to the second types of pollination, that is the cross pollination, or it is also called the allogamy, or what is the xenogamy. xenogamy में क्या होता है? याद रखिएगा, फ्लावर क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, फ्लावर डिफरेंट होंगे, as well as the plant will also different but belonging to the same species or the different species. means plant भी different होंगे, लेकिन याद रखिएगा प्लांट सेम स्पीसीज के भी हो सकते हैं, डिफरेंट स्पीसीज के होंगे। और अगर डिफरेंट फ्लावर के बीच में ट्रांसफर हो रहा है पॉलन ग्रेन, तो वो क्या कहलाएगा? क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा। ठीक है, सपोज जैसे मैंने यहाँ पे ए और बी 2 प्लांट बना रखे हैं। अब ये सेम स्पीसीज के प्लांट हो सकते हैं या डिफरेंट स्पीसीज के प्लांट हो सकते हैं। अगर इस मान लो बी प्लांट से रिलीज हुआ पॉलन ग्रेन ए प्लांट के स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो जाए, तो इस टाइप का पॉलिनेशन क्या कहलाता है? क्रॉस पॉलिनेशन या एलोगैमी या जीनोगैमी कहलाता है। अब आता है कि क्वेश्चन क्या इसमें वेरिएशन आएगा? ऑफ कोर्स वेरिएशन आएगा भाई, क्योंकि 2 डिफरेंट प्लांट्स हैं और 2 डिफरेंट प्लांट्स हैं और वो सेम स्पीसीज या डिफरेंट स्पीसीज के हैं, तो श्योर एंड सर्टेन वेरिएशन आएगा। और क्या किसी मीडियम का रिक्वायरमेंट होगा? ऑफ कोर्स मीडियम का रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि 2 डिफरेंट प्लांट है, ये प्लांट एक दूसरे से फार अपार्ट सिचुएटेड हो सकते हैं। ठीक है, और अगर ये एक दूसरे से काफी दूर हो गए तो उनको हमेशा किसी मीडियम, किसी एजेंट की जरूरत पड़ेगी अपना पॉलन ग्रेन ट्रांसफर करने के लिए दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे। ठीक है, सो दिस इज योर अबाउट द क्रॉस पॉलिनेशन, एलोगैमी और एलोगैमी, जिटोनोगैमी एंड ऑटोगैमी, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको अपना नोट्स कंप्लीट करना है।